اب تک جو ہم پڑھ رہے تھے وہ مبتدا بھی مفرد لفظ تھا اور خبر بھی مفرد لفظ تھا. جیسے یہ الرجل مجتہدون، تو مبتدا بھی مفرد لفظ ہے یعنی سنگل ورڈ ہے، اور خبر بھی سنگل ورڈ ہے. اگر اب مبتدا بھی جو ہے وہ بھی آ، مرکب ہو جائے یا خبر بھی مرکب ہو جائے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے الرجل المجتہد، اب یہ مرکب توصیفی ہے، اور الرجل موصوف ہے، المجتہد اس کی صفت ہے، اور دونوں اسم کے چاروں پہلوؤں کے حساب سے برابر ہیں. اس کے حصے کا یہی ترجمہ کر لیں تو محنتی آدمی. اس کی خبر آ گئی جالسن، محنتی آدمی بیٹھا ہے. تو یہ جو خبر ہے یہ سنگل ورڈ ہے، مفرد لفظ ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ مبتدا ہے، اور یہ جو مفرد لفظ ہے یہ خبر ہے. اب اس کو مبتدا خبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ مبتدا یہاں پر جو ہے پورا ایک مرکب ہے، اور یہ معرفہ ہے، اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہے. تو مبتدا معرفہ ہو گیا اور خبر نکرہ ہو گیا. اس لحاظ سے یہ جملہ اسمیہ کے قاعدوں پر پورا اتر رہا ہے، مبتدا معرفہ خبر نکرہ. تو پہلے ہم نے اب اس میں جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر ہم یہ ترجمہ نہیں کریں کہ آدمی محنتی ہے بیٹھا ہے، یا آدمی محنتی ہے، اب جالسوں کا ترجمہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کہاں کریں. تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پھر ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں، اور پہلا جو ہے وہ مبتدا ہے، دوسرا خبر ہے. اور ہمیں یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ مبتدا کہاں سے شروع ہو کر کہاں پر ختم ہو رہا ہے، اور خبر کہاں سے شروع ہو کر کہاں پہ ختم ہو رہی ہے. یہ جو مثال ہے اس میں مبتدا جو ہے الرجل المجتہد اوپر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اسم کے چاروں پہلوؤں کے حساب سے یکساں ہیں، دونوں معرفہ ہیں، نکرہ معرفہ ہیں، حالت رفع میں ہیں، مذکر ہیں اور واحد ہیں. چنانچہ ترجمہ توصیفی کے حساب سے ہوگا محنتی آدمی، جبکہ جالسون اس کی خبر ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ مبتدا رجل سے شروع ہوتا ہے، المجتہد پہ خبر ختم ہوتا ہے، اور جالسون جو ہے وہ سنگل ورڈ جو ہے وہ اس کی خبر ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اب مبتدا جو ہے وہ سنگل ورڈ ہو، ابراہیم یہ معرفہ ہے، رجل طیب. اب اگر تینوں کو دیکھیں تو ابراہیم رفع میں ہے، رجل بھی رفع میں ہے، طیبون بھی رفع میں ہے. تینوں مذکر ہیں، تینوں واحد ہیں، مگر مسئلہ ہے کہ ابراہیم معرفہ ہے اور رجل طیبون جو ہے نکرہ نکرہ ہے. تو اب یہ توصیفی تو نہیں ہو سکتا. رجل طیبون کو دیکھیں تو یہ دونوں حالت رفع میں ہیں، واحد ہیں، مذکر ہے اور نکرہ ہے. تو یہ تو مرکب توصیفی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس میں رجل موصوف ہے، طیبون اس کی صفت ہے. چنانچہ اتنے حصے کا ترجمہ کر دیں گے نیک آدمی، اور ابراہیم کا ترجمہ ہو جائے گا ابراہیم. یہ مبتدا ہو گیا ابراہیم، اور رجل طیبون جو ہے وہ اس کی خبر ہے. تو اب ابراہیم نیک آدمی ہے، ابراہیم مبتدا معرفہ، اور نیک آدمی رجل طیبون نیک آدمی نکرہ خبر. اب دوسری مثال میں مبتدا جو ہے وہ مفرد لفظ ہے، سنگل ورڈ ہے، اور رجل طیبون جو ہے وہ نکرہ ہے، مرکب توصیفی ہے. پہلی مثال میں دیکھیں مرکب توصیفی معرفہ تھا، اور دوسری مثال میں مرکب توصیفی نکرہ ہے. بعض اوقات ہمیں اس طرح کے معاملات میں مرکب کی کے وسعت کو دیکھنا ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ مرکب کی حالت کو دیکھنا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم نے مرکب کے وسعت کو دیکھا. مرکب کی وسعت پہلے والی مثال میں معرفہ ہے، اور دوسرا جو سنگل ورڈ ہے وہ نکرہ ہے. تو اس لیے پہلا معرفہ مبتدا اور دوسری خبر. جبکہ دوسری مثال میں مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہے، جبکہ جو خبر ہے مرکب توصیفی وہ نکرہ ہے. تو جب ہم کسی مرکب کی حالت یا وسعت کا تعین کریں گے تو ایسے ہول یعنی ایک اکائی کے طور پر جو ہے وہ اس کا تعین کریں گے. تو توصیفی کی حالت اور وسعت نکالنا آسان ہے، کیونکہ یہ دونوں یعنی صرف موصوف اسم کے چاروں پہلوؤں کے حساب سے برابر ہوتے ہیں. اس لیے توصیفی کا وسعت نکالنا بھی آسان ہے اور حالت نکالنا بھی آسان ہے. تو الرجل المجتہد کی حالت تو رفع ہے، اور وسعت جو ہے وہ معرفہ ہے. اس وقت تو ہم وسعت پر غور دے رہے ہیں، تو وسعت معرفہ ہے. جبکہ دوسری مثال میں رجل طیبون میں وسعت جو ہے وہ نکرہ ہے. تیسری مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ابراہیم العالم، رجل طیبون. اب یہ چار الفاظ ہیں، اور یا تو یہ چاروں مل کر مرکب توصیفی بن رہے ہیں،
या ये चारों मिलकर जुमला बन रहे हैं। पहले अगर मुरक्कब तौसीफी देखें कि अगर ये चारों मिलकर मुरक्कब तौसीफी हैं तो इब्राहिम और अल आलिम ये मारफा है, जबकि रजुलन तय्यबुन जो है ये नकरा है। ठीक है, बकाया तीन पहलू में तो ये आपस में मिलते हैं कि चारों जो है वो हालत रफ़ा में हैं, चारों वाहिद हैं, चारों मुज़क्कर हैं। मगर जहाँ तक वसत का ताल्लुक है, इब्राहिम मारफा है, अल आलिम मारफा है, रजुल नकरा है, तय्यब नकरा है, तो तौसीफी तो नहीं हुआ। ये फिर दो हिस्से हो गए। इतने हिस्से को देखें तो दोनों हालत रफ़ा में हैं, दोनों वाहिद हैं, दोनों मुज़क्कर हैं, दोनों मारफा हैं। और आलिम जो है वो सिफत भी है। तो ये फिर इब्राहिम की सिफत हो गई, और तर्जुमा भी मुरक्कब तौसीफी के हिसाब से होगा आलिम इब्राहिम। रजुलन तय्यबुन को देखें, दोनों हालत रफ़ा में हैं, दोनों वाहिद हैं, दोनों मुज़क्कर हैं, दोनों नकरा हैं, तो ये भी मुरक्कब तौसीफी हो गया, जहाँ तय्यबुन रजुलन की सिफत है। तर्जुमा तरतीब बदल कर करेंगे। नेक आदमी, दो मुरक्कब मिल गए, पहला मारफा है, दूसरा नकरा है, तो जुमला बन गया है आलिम इब्राहिम नेक आदमी है। बस ये गलती ना हो कि इब्राहिम आलिम है, ने आदमी है, नेक है, इस तरह ना हो, बल्कि दोनों को अलग अलग हमने कर दिया। और जिस चीज़ को हमने अलग अलग कर दिया, जो इनको अलग अलग ब्रैकेट्स में हमने हटा दिया, उनको वहीं पे सॉल्व करना है, वहीं पे हल करना है। तो आलिम इब्राहिम नेक आदमी है, यानी जब हम जुमला बनाने जाएंगे तो जो हमने पहले से हल कर दिया है उसकी तरतीब को फिर हम तब्दील नहीं करें। तो रजीमुन धुतकारा हुआ, हमीमुन गर्मजोश, अब्दुन उसकी जमा है इबादुन बंदा गुलाम, शाहरुन उसकी जमा है अशरुन महीना, मुफलिहुन कामयाब होने वाला, शातुन बकरी, कदीमुन पुराना, सिराजुन चिराग, दलालुन गुमराही, फितनतुन कसूटी आजमाइश, सदाकतुन सदका, किस्बुन और कजिबुन झूठ, सिदकुन सच्चाई, फीलुन हाथी, जदीदुन नया, और हयावानुन जानवर। अल्फाज मानी देख लीजिए, तो तर्जुमा कर लेते हैं। अश-शैतानु अदुव्वुम मुबीनुन। अब ये तीन अल्फाज हैं। अब या तो ये तीनों मिलकर मुरक्कब तौसीफी बन रहे हैं, इसमें मसला ये है कि अश-शैतान मारफा है, जबकि अदुव्वुन मुबीनुन जो है वो दोनों नकरा नकरा है, तो तौसीफी तो नहीं बन रहे। तो हम इसको दो हिस्सों में इसलिए तकसीम कर रहे हैं कि अदुव्वुन मुबीनुन दोनों नकरा नकरा है। तो शैतान मारफा अलग कर दें। अदुव्वुन मुबीनुन को देखें तो अदुव्वुन मौसूफ है, मुबीनुन सिफत है। दोनों इस्म के चारों पहलुओं के हिसाब से बराबर हैं, और दोनों वाहिद हैं, मुज़क्कर हैं, नकरा है हालत रफ़ा में। तो इसका तर्जुमा तहज़ीब बदल कर होगा, ये हो जाएगा खुला दुश्मन या वाज़े दुश्मन। और ऐ शैतान जो है वो तन्हा आएगा, तो शैतान वाज़े दुश्मन है, ये है बन जाएगा। अल की वजह से शैतान जो है वो मार पाए। जी जी। अब वो जो सवाल आया था, खैर अब वो सवाल तो मुरक्कब के मुतालिक आया था। यहाँ पर इन्ना की वजह से शैतान जो है वो मुब्तदा हो गया। इन्ना का फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें ये मालूम चल जाता है कि मुब्तदा क्या है। क्योंकि अदुव्वुन मुबीनुन अगर नकरा होता, अगर मुब्तदा होता, तो इन्ना की वजह से वो तब्दील आ जाती। तो अब यहाँ ये जो मैंने कल अर्ज किया था ना, उसका फ़ायदा आज नज़र आ रहा है कि जब तीन या चार अल्फाज हो तो बाज़ औक़ात हमें पहचानने में मसला पेश आता है कि मुब्तदा क्या है, ख़बर क्या है। तो इन्ना से के ज़रिए फ़ायदा ये हो गया कि जो मंसूब है वो मुब्तदा होगा, और जो मंसूब नहीं है वो मुब्तदा नहीं होगा। तो यहाँ जो तीन अल्फाज है, शैतान अदुव्वुन मुबीनुन, इसमें जो मंसूब है वो शैतान है, जबकि अदुव्वुन मुबीनुन जो है वो नगर मंसूब नहीं है। तो एक तरह तो हमने इस तरह पहचान लिया कि इसमें शैतान जो है वो मुब्तदा है और अदुव्वुन मुबीनुन जो है वो मुब्तदा नहीं है। दूसरा फिर हमने कायदे से भी पहचान लिया, जिस तरह भी हमने पहले वाले जुमले में किया था, कि शैतान जो है वो मारफा है, जबकि अदुव्वुन मुबीनुन नकरा है, तो ये अलहदा है, वाज़े दुश्मन, और शैतान अलहदा है। सिर्फ तर्जुमे में बेशक आ जाएगा और हम कहेंगे कि शैतान मुब्तदा इन्ना की वजह से मंसूब हुआ है, तो बेशक शैतान वाज़े दुश्मन है, इन्ना की वजह से मुब्तदा मंसूब हो गया। बकिया तफसीलात वही है जो अभी हमने पहले जुमले में किया था। जबकि तीसरे जुमले में लईसा की वजह से हमें खबर पहचानना आसान हो गया। लईसा की वजह से खबर जो है वो हालत नसब में आ गई। यानी हमें पता है कि लईसा अपने खबर को मंसूब कर देता है, माँ और लईसा। तो शैतान तो मंसूब नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये तो मुब्तदा है। और वलीयन हमीमन दोनों हालत नसब में आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिलकर खबर बनते हैं। तो जब ये दोनों मिलकर खबर बन गए तो हमने अब ये अलग अलग कर दिया, शैतान को अलग कर दिया और वलीयन हमीमन को अलग कर दिया। इसका हम एनालाइज किया तो ये दोनों इसम के चारों पहलुओं के हिसाब से बराबर हैं, दोनों वाहिद हैं, मंसूब हैं,
नकरा हैं और मुज़क्कर हैं। तो इतने हिस्से का हमने तर्जुमा कर दिया, गर्मजोश दोस्त। गर्मजोश दोस्त। जबकि शैतान तो शैतान हो गया, तो नहीं शैतान गर्मजोश दोस्त है। फिर इसको बा मुहावरा कर दें, शैतान गर्मजोश दोस्त नहीं है। अशरको दलालुल मुबीन, यहाँ पे मुब्तदा मारफा है और ख़बर नकरा है। हमने अलग कर दिया, क्योंकि ये मारफा है और ये नकरा है, ये नकरा है, तो ये दोनों नकरा नकरा मिलकर कौन सा मुरक्कब बनाते हैं? मुरक्कब तौसीफी बनाते हैं। दोनों वाहिद हैं, मुज़क्कर हैं, मरफू हैं और नकरा हैं। इतने इसका तर्जुमा तरतीब बदल कर होगा, वाज़े दुश्मन, खुला दुश्मन, सॉरी वाज़े दलालत या वाज़े गुमराही। और शिर्क जो है वो शिर्क हो गया। तो शिर्क वाज़े गुमराही है, शिर्क वाज़े दलालत है। यहाँ पे मुब्तदा मारफा है और ख़बर नकरा है। जैसे शैतान उदुव्वुन मुबीनुन था, इस तरह शिर्क दलाल मुबीनुन है तज़किये के हिसाब से। और फिर इन्ना आ गया, इन्ना की वजह से ना जुल्मुन, यानी इस जुमले में ना जुल्मुन नसब है ना अजीमुन नसब है, बल्कि नसब जो है वो शिरका है। यानी अशिरका मुब्तदा हुआ और जुल्मुन अजीमुन जो है खबर है। ये शुरू में अगर आसानी से समझने के लिए हम ये कर सकते हैं। फिर मजीद इसको हमने देखा तो अशिरका मारफा है, जबकि जुल्मुन अजीमुन नकरा नकरा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों अलग अलग हैं। जुल्मुन अजीमुन को हमने एक तरफ कर दिया, इन दोनों अल्फाज को देखा कि ये कौन से मुरक्कब बनते हैं, तो ये मुरक्कब तौसीफी बन रहे हैं। इसम के चारों पहलुओं के हिसाब से अजीमुन जुल्मुन के बराबर हैं। दोनों वाहिद हैं, मुज़क्कर हैं, नकरा हैं, हालत रफ़ा में। तो इतने हिस्से का तर्जुमा तो हो जाएगा बड़ा जुल्म, अजीम जुल्म। और यहाँ शिर्क का तर्जुमा हो जाएगा शिर्क, इससे पहले बेशक आ जाएगा, तो बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। छठे मिसाल में अब्दू पर अलिफ्लाम लगा हुआ है, अलमुमिनू पे अलिफ्लाम लगा हुआ है, मुफलिहून पे अलिफ्लाम नहीं है। यानी अल अब्दू भी मारफा है, अलमुमिनू भी मारफा है और मुफलिहून जो है वो नकरा है। तो इनका आपस में कोई ताल्लुक इस तरह नहीं बनता कि ये तौसीफी नहीं बन रहे। और अल अब्दुल मोमिनू जो है, ये दोनों आपस में इसम के चारों पहलुओं के हिसाब से बराबर हैं। दोनों हालत रफ़ा में हैं, दोनों मुज़क्कर हैं, दोनों वाहिद हैं, दोनों नकरा हैं। इतने हिस्से का तर्जुमा हो जाएगा मोमिन बंदा। और चूंकि इससे पहले हल है, तो क्या लगा देंगे, क्या मोमिन बंदा मुफलिहुन फला पाने वाला या कामयाब। और फिर जुमला बना देंगे तो है लगा देंगे। यहाँ अल अब्दुल मोमिनू मुरक्कब तौसीफी मारफा है और मुफलिहुन सिंगल वर्ड जो है मुफरद लफ्ज़ वो नकरा है। वही जुमला इसमें के कायदे के मुताबिक, मुब्तदा मारफा खबर नकरा। तो यहाँ मुब्तदा मुरक्कब तौसीफ़ी मारफा है। और अच्छा, यहाँ अब तक ये भी देखते रहिए कि वो जो कायदा है खबर मुब्तदा के मुताबिक होता है जिन्स और अदद में, वो इन सब पे अप्लाई हो रहा है। अशैतान अदुव्वुन मुबीनुन पे अशैतान वाहिद मुज़क्कर है, तो अदुव्वुन मुबीनुन मुरक्कब तौसीफ़ी, अब हम इसको इकाई के तौर पे ले रहे हैं। जब हमने इसके वसत को पहचाना था, तब हमने इसके इकाई को देखा था कि ये मारफा है या नकरा है। इसी तरह मुरक्कब तौसीफ़ी यहाँ पर अशैतान की खबर तो है, मगर यहाँ पर ये मुज़क्कर भी है और वाहिद भी है। नहीं, जब हम मुरक्कब का तयन इस तरह कर रहे होते हैं, तो फिर इसको इकाई के तौर पे ले रहे होते हैं, सिंगल यूनिट के तौर पे ले रहे होते हैं। तो अशैतान अदुव्वुन मुबीनुन पे शैतान मुब्तदा मुज़क्कर वाहिद है, तो अदुव्वुन मुबीनुन भी मुज़क्कर और वाहिद है। अल अब्दुल मोमिनु मुफलिहुन में अल अब्दुल मोमिनु चूंकि मुब्तदा है, तो अब इसकी खबर जो आएगी वो वाहिद आएगी और मुज़क्कर आएगी, क्योंकि अल अब्द की खबर आ रही है, मोमिन की खबर नहीं आ रही। यानी इस अल अब्दुल मोमिनु मुफलिहुन को अगर दो तरीके से हम एनालाइज करें, एक आसान तरीका वो ये कि अल अब्दुल मोमिनु मुब्तदा है और मुफलिहुन खबर है। मगर गौर करें तो खबर किसकी है? खबर जो है वो मोमिन की नहीं है, क्योंकि मोमिन तो सिफत है। खबर तो असल में मौसूफ की है कि बंदा फला पाने वाला है। बंदे की एक एडिशनल सिफत बयान कर दी गई है कि वो मोमिन है। चुनांचे अगर आप अल अब्दू को फोकस करें, तो इस ये वाहिद है और मुज़क्कर है, तो इसके लिए खबर भी वाहिद और मुज़क्कर आई है। और अगर ऐसे पूरे मुरक्कब तौसीफी को भी देखें अल अब्दुल मोमिनो, तो ये वाहिद है और मुज़क्कर है। चुनांचे वो कायदा भी चलता आ रहा है कि खबर मुब्तदा के मुताबिक होता है जिन्स में और अदद में। उम्मीद है मैं बात समझा पा रहा हूँ। यानी वो सारे कायदे पिछले वाले भी इसमें अप्लाई हो रहे हैं। अगले जुमले में जो है वही जुमला है, मगर सिर्फ यहाँ भी अब देखें, इन्ना की वजह से हमें पहचानना आसान हो गया मुब्तदा क्या और ख़बर क्या है। या मुब्तदा दोनों अल अब्दा भी हालत नसब में है,
अलमुमिना भी हालत नसब में है, जबकि मुफलिहून जो है वो नकरा है, वो रफ़ा है। तो रफ़ा की मदद से फिर हमने इसको अलग कर दिया, अल अब्दा अल मोमिना को अलग कर दिया, मुफलिहून को अलग कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि इन्ना का असर खबर पे नहीं आता। तो खबर को हमने अलग कर दिया और मुब्तदा को अलग कर दिया। अब मुब्तदा जो दो हैं, अल अब्दा अल मोमिना, क्या इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है? तो इन दोनों को देख लें, ये दोनों हालतें नसब में हैं, ये दोनों वाहिद हैं, ये दोनों मुज़क्कर हैं, और ये दोनों मारफा हैं। चनांचे इन दोनों का आपस में ताल्लुक बन गया, ये मरकब तौसीफ़ी हैं। अल अब्दा मौसूफ है, अल मोमिना सिफत है। तर्जुमा तरतीब बदल कर करेंगे, मोमिन बंदा। तो जी हाँ, बेशक मोमिन बंदा मुफलिहून कामयाब है। अब यहाँ पर भी ये मोमिन जो इन्ना पिछ की वजह से दोनों जी दोनों वो हो जाएंगे नसब में। जी, अब तौसीफी, अगर हमने मिसाल के तौर पर अल अब्दा को तो तब्दील कर दिया और अल जी जी मिनू को रहने दिया, जी। तो ये तौसीफी के कायदे के मुताबिक उतर रहा है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल तौसीफी का कायदा क्या बिल्कुल। है कि सिफत मौसूफ के मुताबिक होता है। नहीं उतर रहा ना फिर तो। जी अगर हम अलग अलग कर देंगे फिर तो नहीं उतरेगा ना। ये एक ही तरह का होना चाहिए। तौसीफी का कायदा ये कि इसम के चारों पहलुओं के हिसाब से जी बराबर हाँ, होना जी चाहिए। जी जी जी। तो यहाँ इन्ना की वजह से, अच्छा, अब ये तो अभी हमने मुरक्कब तौसीफी पढ़ा है ना, आगे मुरक्कब इजाफी पढ़ेंगे, इशारी पढ़ेंगे, जारी पढ़ेंगे। तो ये तब्दीली हर हर मुरक्कब के हिसाब से आता है। मिसाल के तौर पर ये इन्ना के बाद होता रजुलन व तिफलुन। मिसाल के तौर पर इस तरह होता रजुलन व तिफलुन, जी जी जालिसानी, के आदमी और बच्चा बैठे हैं। अब अगर ये इन्ना आ जाता है यहाँ पर, तो इन्ना के बाद हम ये देखेंगे कि ये जिसको हम मुब्तदा करार दे रहे हैं, ये सिंगल वर्ड है या कंपाउंड है। तो यहाँ पे ये बजाय मुरक्कब होने के, ये मुरक्कब है बजाय मुफरद लफ्ज़ के। अब मुरक्कब कौन सा है? ये मुरक्कब अतफ़ी है। मुरक्कब अतफ़ी का कायदा क्या है कि जितने भी अल्फाज होते हैं उसके अंदर वो हालत और वसत में यकसा होते हैं। तो इसको हम वसत करके अर रजूलू कर देते हैं और हालत नसब में ले आते हैं, क्योंकि अतफ़ी का कायदा ये है कि जितने भी अल्फाज होंगे उनकी हालत यकसा होगी। तो इन्ना की वजह से हालत यकसा हो गई। इन्ना यानी मुरकब अतफ़ी मुकम्मल तब्दील होता है हालत के अंदर में और वसत में। जितने भी अल्फाज होंगे या तो सारे रफ़ा में होंगे, या सारे नसब में होंगे, या सारे जर में होंगे। और इसी तरह तौसीफ़ी है, तौसीफ़ी में भी यही होता है कि अगर इसकी हालत को तब्दील किया जाए तो मुकम्मल हालत तब्दील होगी, या तो दोनों हालत यानी मौसूफ और सिफत दोनों हालत रफ़ा में होंगे, या दोनों हालत नसब में होंगे, या दोनों हालत जर में होंगे। तो इन्ना की वजह से अल अब्दुल मोमिना मुकम्मल तब्दील हुआ है। जो अल अब्दुल मोमिनू था, इन्ना की वजह से मरकब तौसीफ़ी मुकम्मल तब्दील हुआ है और अब्दुल मोमिना हो गया। और मुकम्मल तब्दील होने की वजह यही है कि तौसीफ़ी का कायदा यही है कि सिफत मौसूफ के मुताबिक होती है। और इन्ना की वजह से हमने ये भी पहचान लिया कि अल अब्दुल मोमिना जो है वो मुब्तदा है। अल अब्दुल मोमिना वाहिद है और मुज़क्कर है, चुनाचे मुफलिहून भी वाहिद और मुज़क्कर आया। इन्ना का असर से मुब्तदा पे आता है, खबर पे नहीं आता, इसलिए खबर जो है वो हालत रफ़ा में। ये बात क्लियर हो गई है कि जब भी कोई एराबी तब्दीली आती है किसी मुरक्कब की, तो वो मुरक्कब के कायदे के मुताबिक तब्दील होता है। एराबी तब्दीली की बात हो रही है। जैसे मुरक्कब अतफ़ी हमने पढ़ा कि जितने भी अल्फाज होते हैं उन सब की हालत और वसत यकसा होती है, तो यानी ये हालत सबकी यकसा होती है। अब कोई मुरक्कब तौसीफ़ी रफ़ा से नसब तब्दील होगा तो मुकम्मल तब्दील होगा, जितने भी अल्फाज हैं सब नसब में आ जाएंगे। और अगर वो हालत जर में होगा तो जितने भी अल्फाज हैं वो सारे हालत जर में आ जाएंगे। यही मामला तौसीफ़ी के साथ है। तौसीफ़ी में तो इसम के दो के बजाय चार पहलू में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अगर हालत में तब्दीली आएगी तो मुकम्मल तब्दीली आएगी, यानी मुसब मौसूफ की हालत भी तब्दील होगी और सिफत की हालत भी तब्दील होगी, जैसे कि अल अब्दुल मोमिना के साथ हुआ। ये अल अब्दुल मोमिनू था, अल अब्दुल मोमिना हो गया। अच्छा, तभी तो हम पहचानेंगे कि ये तौसीफ़ी है अल अब्दुल मोमिना को, वरना हमारे लिए मसला हो जाएगा कि अगर मौसूफ अलग हो और सिफत अलग हो। आठवें को देखें, आठवें में मुब्तदा क्या है और ख़बर क्या है। तो मुब्तदा जो है वो मुरक्कब अतफ़ी है, और ख़बर जो है वो मुब्तदा के मुताबिक है। मुब्तदा जो है वो मुसन्ना है तो ख़बर भी मुसन्ना है, और मुब्तदा मुज़क्कर है तो ख़बर भी मुज़क्कर है। यानी अगर हम इसको यहाँ तक इस तरह तोड़ दें, ये एक मुरक्कब तौसीफ़ी है, ये एक मुरक्कब इससे तौसीफ़ी। स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर तो आ नहीं रही।
दोबारा बोलिए। स्क्रीन मैंने स्क्रीन थोड़ी ऊपर करें। हाँ जी ऐसे जी जी अभी ठीक है। ठीक। तो अब ये दो जी मुरक्कब, जी ठीक है। जी जी, दो मुरक्कब तौसीफी है और ये पूरा मुरक्कब अतफी है। ये पूरा मुरक्कब अतफी है और ये कैसा मुरक्कब अतफी है जिसमें दो मुरक्कब तौसीफी हैं, ये भी तौसीफी है, ये भी तौसीफी है। इसको यहीं हल कर लेते हैं। तो कसीर जमात या बड़ी जमात, इसको यहीं हल कर दीजिए। छोटी जमात, बड़ी जमात, छोटी जमात। अल्फियतु कसीरतु दोनों वाहिद हैं, मुअन्नस हैं, मरफू हैं हालत और मारफा हैं। अल्फियतु कलीलतु दोनों हालत रफ़ा में हैं, दोनों वाहिद हैं, दोनों मुअन्नस हैं, दोनों मारफा हैं। दोनों अपनी अपनी जगह मुरक्कब तौसीफी हैं और दोनों का हमने अपनी अपनी जगह पे तर्जुमा कर दिया, बड़ी जमात, छोटी जमात। अब ये दो मुरक्कब तौसीफी को एक हुर्फ अतफ वा ने जोड़ा हुआ है और है ये पूरा मुरक्कब अतफी, बड़ी जमात और छोटी जमात। इसको समझ लीजिए, क्योंकि फिर मसला ये हो जाता है कि जमात बड़ी है और जमात छोटी है, ये तर्जुमा हो जाता है। तो असल में ये तौसीफी है और दोनों को वहीं हल कर लीजिए। ये भी नहीं हो कि जमात बड़ी है और छोटी है, क्योंकि दोनों तौसीफी हैं, दोनों ब्रैकेट्स का आपस में एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बड़ी जमात और छोटी जमात अपनी अपनी जगह ब्रैकेट्स को सॉल्व कर दिया हमने। इस पूरे को मुरक्कब अतफी और उस पूरे मुरक्कब अतफी को हम एक इकाई लेकर उसकी खबर बनाएंगे। अच्छा, अब ये जो मुरक्कब अतफी है इसमें दो जमातों के मुतालिक बात हो रही है और दोनों जमातें मुअन्नस हैं, चुनांचे खबर भी मुसन्ना आएगी और मुअन्नस आएगी। तो बड़ी जमात और छोटी जमात हाजिर हैं। यहाँ जमात चूंकि मुअन्नस है तो हाजिरा तानी है। हाजिरुन की मुअन्नस होती है हाजिरतुन और उसका मुसन्ना हो जाता है हाजिरा तानी। यानी इसके लिए हमें शायद ये कि हम वाहिद मुज़क्कर पर आ जाएं, उसकी गर्दान करें और उसके बाद उसके मुअन्नस बना लें हाजिरातुन। अब इसकी गर्दान करें हाजिरतुन, हाजिरतन, हाजिरतन, हाजिरतिन, हाजिरातानी, हाजिरातैनी, हाजिरातैनी। तो ये हाजिरातानी जो है वो खबर है, मुअन्नस है, मुसन्ना है। ठीक है जी। अगर हमें ब्रैकेट्स करना आ जाएगा तो इंशाल्लाह फिर तर्जुमा भी कर सकेंगे और सबसे पहले ये देख सकेंगे कि एक मुब्तदा कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और अपने अंदर कितने मरकबात रख रहा है या मुफरद अल्फाज रख रहा है। अब यहाँ भी चार अल्फाज हैं, ये मारफा है, ये मारफा है, ये नकरा है, ये नकरा है। तो हमने इन दोनों को अलग कर दिया, मारफा मारफा को अलग कर दिया, नकरा नकरा को अलग कर दिया। मारफा मारफा को देख लिया तो दोनों हालत रफ़ा में हैं, दोनों वाहिद हैं, दोनों मुज़क्कर हैं, दोनों मारफा हैं। असब्र मौसूफ हुआ, जमील उसकी सिफत हो गई। यही तर्जुमा हमने कर दिया कि खूबसूरत सबर। और फौजुन कबीरुन दोनों हालत रफ़ा में हैं, दोनों वाहिद हैं, दोनों मुज़क्कर हैं, दोनों नकरा है। ये फौजुन मौसूफ है, कबीरुन उसकी सिफत है। यही हमने तर्जुमा कर दिया बड़ी कामयाबी। दो मुरक्कब मिल गए, जुमला बन गया खूबसूरत सबर बड़ी कामयाबी है। यहाँ पर यह कायदा भी ध्यान में रहे कि जब दो मुरक्कबात मिलते हैं, जब दो मुरक्कबात मिलते हैं तो जुमला बन जाता है। तो असब्र जमील भी एक मुरक्कब है, गो कि ये दोनों मुरक्कब तौसीफी हैं। तो आगे जाके तो ये भी होगा कि एक मुरक्कब तौसीफी होगा और एक कोई दूसरा मुरक्कब होगा। तो जब भी दो मुरक्कब मिले, दरमियान में कोई और लफ्ज़ ना आ जाए, तो पहला मुरक्कब मुब्तदा हो जाएगा और दूसरा मुरक्कब जो है वो खबर हो जाएगी। कोई सवाल है? अच्छा सर, ये पूछे जी, ये फौजुन कबीरुन तो एक बड़ी कामयाबी नहीं करेंगे यहाँ पर, या कोई वो ज़रूरी नहीं है मुहावरे यहाँ। के हिसाब से करेंगे? कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो नकरा लाया गया है, वो तो खबर की वजह से लाया गया। सही हो, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई वजह नहीं। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक और सवाल जहन में आ रहा है कि ये जब हम ये जुमला इसमिया कर रहे हैं, जितने भी जुमला इसमिया में हम जब तर्जुमा करते हैं तो उसके साथ है लगाते हैं, यानी प्रेजेंट के रेफरेंस से करते हैं। तो इसमें जमाना तो इस हिसाब से है वाला आ गया। तो मतलब हम कहेंगे जी था या वो इस तरह को इसमें मफहूम वो सिर्फ जो है वो जुमला फेलिया की सूरत में ही आता है। जी, वो जुमला फेलियर में आ जाएगा। यहाँ जुमला इस्मिया में आगे जाके हम काना लगाएंगे तो वो उससे माजी हो जाएगा और यकून जो है वो मुस्तकबिल के लिए आ जाएगा। और अगर काना यकून जुमला इस्मिया में ना हो तो फिर हम जुमला इस्मिया का तर्जुमा हाल ही में कर रहे हैं।
یعنی اگر کسی اور زمانے میں جانا ہے تو اس کے لیے کانا یکون لگے. ہاں، ورنہ کانا یکون تو کئی، میں نے مثال بتائی ہے، ورنہ آگے جا کر ہم جملہ اسمیہ میں فعل کو بطور خبر لے آئیں گے. تو جب فعل کو بطور خبر لے آئیں گے تو وہیں جملہ اسمیہ میں زمانہ آ جائے گا. اچھا جناب، اب یہ 10واں ہے، حل المعلمات المجتہدات قاعدات. یہاں پر 3 الفاظ ہیں، 2 معرفہ ہیں، 1 نکرہ ہے. تو یہ ان دونوں کو ہم نے الگ کر دیا، اس کو الگ کر دیا. یہ المعلمات المجتہدات مرکب توصیفی ہے، کیونکہ دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں مؤنث ہیں، دونوں جمع ہیں، اور دونوں معرفہ ہیں. تو اتنے حصے کا ترجمہ کر دیں گے. محنتی استانیہ، المعلمات موصوف ہے، المجتہدات اس کی صفت ہے. محنتی استانیہ یہ ہو گیا مبتدا، اور قاعدات اس کی خبر. بیٹھی ہیں، کیا محنتی استانیہ بیٹھی ہیں. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، یعنی جو مبتدا ہے وہ مؤنث ہے اور جمع ہے. یعنی یہ فوکس تو معلمات پر ہے کہ معلمات جو ہے وہ مؤنث بھی ہیں اور جمع بھی ہے. اسی کی وجہ سے اس کی صفت بھی مؤنث و جمع آئی ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کی خبر بھی مؤنث و جمع آئی ہے. ہو گیا ہم توصیفی اور مفرد لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں. میں کیا محنتی استانیہ کھڑی ہیں. مگر اگر کسی تفسیر میں لکھا ہو یا کسی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ المعلماتو کی صفت المجتہداتو آئی ہے، المعلماتو کی خبر قاعداتن آئی ہے، تو بات وہ بھی صحیح ہے، صرف کہنے کا انداز الگ الگ ہے. تو اصل چیز تو معلمات ہے، اس کی صفت جو ہے وہ المجتہداتو موصوف کے مؤنث اور جمع ہونے کے حساب سے آئی ہے. اور اسی طرح قاعداتن خبر المعلماتو کے مؤنث اور جمع ہونے کی وجہ سے آئی ہے. تو مین فوکس جو ہے وہ المعلماتو پر ہے، یعنی موصوف پر ہے. کبھی اس کی صفت اس کے ساتھ آئی ہے توصیفی بنتے ہوئے، اور کبھی اس کی خبر آئی ہے خبر کے طور پر. تو یہاں مبتدا مؤنث اور جمع ہے، تو خبر بھی مؤنث اور جمع ہے. کیا محنتی استانیہ کھڑی ہیں. تو اب اس کا جواب آتا ہے مل معلمات المجتہدات قاعداتن. قاعداتن جو ہے وہ ماں کی وجہ سے حالت نصب میں آیا. آتن آتن آتن، تو یہاں آتن حالت نصب کی وجہ سے آیا. المعلمات المجتہدات وہی مبتدا ہے، اور قاعداتن اس کی خبر ہے. محنتی استانیہ کھڑی نہیں ہے، ماں کی وجہ سے خبر حالت نصب میں ہے. محنتی استانیہ کھڑی نہیں ہے. وہ کیا، تو وہی ترتیب ہے جو کہ جملہ 10 پہ آئی ہے. اسی طرح ان المعلمات، بیٹھی جی ہیں کھڑی ہیں قاعداتن. قاعدات میں بیٹھی ہیں، سوری بیٹھی بیٹھی ہیں. بیٹھی. جزاک اللہ. اچھا جی. ان المعلمات المجتہدات، انا کی وجہ سے مبتدا جو ہے وہ حالت نصب میں آ گیا. وہی آتن 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 ہے، آتن تو اس میں ہوتا نہیں ہے. تو انا کی وجہ سے مبتدا جو ہے وہ حالت نصب میں ہے، اور قائماتن ایک خبر ہے. بے شک محنتی استانیہ کھڑی ہیں. یہاں پہ بھی وہی ہے کہ المعلمات المجتہدات جو ہے یہ مؤنث اور جمع ہے، تو قائماتن جو ہے وہ مؤنث اور جمع ہے. یہاں بھی پہچاننا آسان ہے کہ انا اپنا اثر مبتدا پہ لے کے آتا ہے، تو مبتدا نصب ہے، اور یہ لفظ جو ہے یہ رفع ہے. اس کا مطلب ہے کہ انا کا اثر جو ہے وہ اتنے حصے پر آیا ہے، تو یہ مبتدا ہو گیا اور یہ خبر ہے. دیکھیں پہلے والے میں ماں کے بعد جو 3 الفاظ ہیں، شروع کے 2 الفاظ تو رفع ہی ہیں کیونکہ ان پہ پیش لگا ہوا ہے، جبکہ قاعداتن رفع نہیں ہے. تو یہ پہچاننا میں آسان ہو گیا کہ ماں کا اثر جو ہے قاعداتن پر آیا، یعنی کہ قاعداتن خبر ہے، جبکہ المعلمات المجتہدات خبر نہیں ہے، مبتدا ہے. جب انا ما لیسا آ جائے تو ذرا مبتدا خبر کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب، الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا. یہاں پر ہم نے مبتدا اور خبر جو ہے مفرد اب تک ہم نے پڑھ لیا مفرد مرکب مفرد مرکب اور مرکب 4 ہو گئے. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اگر تو کوئی اعرابی تبدیلی آتی ہے، یا حالت کی تبدیلی آتی ہے، یا وسعت کی تبدیلی آتی ہے، تو اگر وہ مرکب عطفی ہو تو جتنے الفاظ ہیں سارے، اگر وسعت کی تبدیلی آ جائے تو سارے نکرہ ہوں گے یا سارے معرفہ ہوں گے. اور اگر حالت کی تبدیلی آ جائے تو سارے رفع ہوں گے یا نصب ہوں گے یا جر ہوں گے. یہی معاملہ توصیفی کے ساتھ ہے. اگر توصیفی میں اعرابی تبدیلی آئے تو مکمل تبدیلی آئے گی، یعنی موصوف اور صفت دونوں رفع ہوں گے یا دونوں نصب ہوں گے یا دونوں جر ہوں گے. اسی طرح اگر مرکب توصیفی میں وسعت میں تبدیلی آئے گی تو مکمل یعنی موصوف اور صفت دونوں نکرہ ہوں گے یا دونوں معرفہ ہوں گے. تبھی تو ہم پہچانیں گے کہ یہ توصیفی ہے یا عطفی ہے. اس کا
इसका काम, इस कायदे का काम इंशाल्लाह आगे आएगा। साथ साथ हमने ये भी समझ लिया कि अगर दो मुरक्कबात साथ साथ आ जाएं, जैसे ये दो मुरक्कब साथ आ गए, असब्रुल जमीलु फौजुन कबीरुन, पहला मारफा है और दूसरा नकरा है, मगर ये दोनों साथ साथ आ गए, दो मुरक्कबात साथ आ गए तो जुमला बन जाता है। यहाँ तो ये है कि ये दो मुब्तदा, ये दो जो मुरक्कब हैं ये मुरक्कब तौसीफ़ी हैं, और दोनों तौसीफ़ी की वजह से एक मारफा है और दूसरा नकरा है, तो यहाँ तो ये जुमला बन गया। बाज़ औक़ात दो मुरक्कबात अलग अलग होते हैं, जैसे एक तौसीफ़ी है एक इज़ाफ़ी है, तो ऐसी ये मिसाल है। तो ऐसी सूरत में ज़रूरी नहीं है कि दोनों मुरक्कब जो हैं वो एक मारफा हो एक नकरा हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि दोनों मुरक्कबात मारफा हो मगर वो जुमला बना सकते हैं। तो वहाँ कायदा सब जगह एक ही लगता है कि अगर दो मुरक्कब जमा हो गए, अगर दो मुरक्कब जमा हो गए तो जुमला बन जाता है।